ایک آخری کوشش کے طور پر کوئی نتیجہ اس کا مثبت نتیجہ برآمد ہو، تاکہ صورتحال خاصی مشکل ہو الجھی ہوئی ہے اور کچھ لوگ اس کو مزید الجھانے کے لیے اپنی جگہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس بات کی ضرور توقع رکھنی چاہیے کہ صورتحال درمیان میں ایسی بن جائے کہ کچھ تو خون بند ہو جائے اور سارا خطہ جو ہے اس آگ کی لپیٹ میں جو آیا ہوا ہے یہ سے بچ جائے، اور جو بین الاقوامی امن ہے اور ورلڈ آرڈر ہے وہ بھی کوئی ڈراسٹک تبدیلیوں کا امر مجبوری نشانہ نہ بنے۔ تو ایک تو وہی ان کے اس اقدام کے بارے میں کہنا چاہتا تھا کہ یہ بہت اچھا ہوا۔ البتہ یہ بات مجھے وہاں بھی سعودی عرب میں بھی رہ کر اور اس پر لوگوں سے مل ملا کر مجھے محسوس ہوتا رہا کہ اس گلف کے بارے میں جو خبریں آتی رہی ہیں، جو صحیح پوزیشن واضح ہونی چاہیے تھی وہ میرا خیال ہے پوری طرح واضح نہیں ہوئی۔ مجھے اس کا احساس کچھ تو اپنے معلومات کی بنیاد پر بھی اور کچھ اس بات پر نہیں ہوا کہ میں نے وہاں خود سعودی عرب میں رہ کے تو سعودی جو حکمران ہیں افراد ان کی تقریر سنی، پھر کچھ دنوں بعد اتفاق سے جب میں فلائٹ بند ہونے کو مصر گیا تو اتفاق کی بات ہے کہ اس دن حسنی مبارک تقریر کر رہے تھے، 2 گھنٹے ان کی تقریر سنی تو بہت وضاحت کے ساتھ تفصیل کے ساتھ انہوں نے، اور میرا خیال ہے کہ وہ تقریریں پوری کی پوری شاید سب جگہ رپورٹ نہیں ہوئی، تو بڑی وضاحت انہوں نے کی کہ کیا کوششیں انہوں نے کی ہیں اس سچویشن کو اوائڈ کرنے کی، لیکن بدقسمتی سے وہ نہیں ہو سکی۔ تو اسی طرح پھر اب اپنے ملک کے اندر اس طرح کا رد عمل شروع ہو گیا اور دوسرے ممالک میں بھی کئی ممالک میں اس کا رد عمل شروع ہو گیا، لیکن بہرحال اب میں یاد کیا کہ اس کی تفصیل میں اس پر جانے کا فائدہ نہیں ہے کہ اب ایک نیا انیشیٹو لیا گیا ہے اور اس پر ساری توجہ مرکوز ہونی چاہیے کہ وہ کامیاب ہو۔ اور یہ میری سمجھ میں کم از کم ایک بات سیاسی کارکن کی حیثیت سے نہیں آ رہی ہے کہ کویت سے فوجیں واپس ہٹانے میں کیا امر مانے ہیں کہ جس کے نتیجے میں نہ ہٹانے کے نتیجے میں یہ سارا عالم جنگ کی لپیٹ میں آ گیا ہے۔ وہ ایسی کیا چیز ہے وہ ابھی تک نہ عراقیوں کی طرف سے اور نہ کسی اور طرف سے بیان نہیں کی گئی کہ وہ ایسی کیا بات ہے، ہم نہیں سمجھے کہ آخر کیا چیز ہے کہ کویت پر قبضہ برقرار رکھنا ضروری ہے تاکہ ساری دنیا جنگ کی لپیٹ میں آ جائے۔ اور یہ فیصلہ چونکہ ایک آدمی کے ہاتھ میں ہے اس لیے کوئی اس میں اور کچھ کر نہیں سکتا، مگر یہ بات مجھے ایک خدشہ دکھائی دیتا ہے کہ جس طرح بعض جگہوں میں لوگ یعنی کچھ تو مخالفت جنگ کی کر رہے ہیں، وہ تو سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جنگ کی مخالفت، بعض لوگ صدام کی حمایت کر رہے ہیں۔ اب صدام کی حمایت کا مطلب ہمدردی بھی ہو سکتا ہے، انسانی دنیا ہے، لیکن یہ بات بھی بین الاقوامی سازشوں میں کوئی بعید قیاس نہیں ہونی چاہیے کہ وہ لوگ جو ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں وہ غالباً خود چاہتے ہیں کہ عراق کی یہ قوت جو ہے یہ ٹوٹ جائے اور یہ کھڑا رہے، ڈٹا رہے، تاکہ یہ جنگ جاری رہے، اور اس کے نتیجہ جو ہونا ہے وہ تو سب کو معلوم ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہونا ہے۔ یہ باتیں ہمارے الیکشن میں آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کو شکست دینے کے لیے کھڑے رکھتے ہیں کہ یہ اس کو ضرور کھڑا رکھنا ہے، یہ اس قسم کی سازشیں بھی ہو سکتی ہیں، اور ان ایڈوانٹیجلی یعنی بے خیالی میں بھی اس سپورٹ کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، بجائے سے کہ سب لوگ اس پر زور دیتے کہ ایک آدمی یہ بات مان جائے کہ اگریشن ویکیٹ کرے، وہ اگریشن ناجائز ہے، غلط ہے، اس کو خالی کرے اور ساری دنیا امن میں رہے، یعنی اس کے بجائے بالکل برعکس لوگوں نے سٹینڈ لے لیا ہے۔ تو بار جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ بہت اچھا ہوا کہ وزیر اعظم صاحب نے اس کا انیشیٹو لیا ہے، اور اس کو اگر اس کے راستے میں بھی
मुश्किलात आ सकती हैं। मेरी उनसे तो तफसील से बात नहीं हुई, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि इस रास्ते में भी मुश्किलात आ सकती हैं। खुद इत्तेहादियों को गलतफहमी हो सकती है। इसके अगर कोई बात सदाम की तरफ से न मानी जाए, उसी पॉइंट पर हैं जहाँ खड़े हैं, तो उसका भी असर हो सकता है, और मानी जाए तब भी हो सकता है। फिर जंग को जारी रखने और उसके मंतकी नतीजे पर पहुंच, ये सब चीज़ें इस दरमियान में इस इनिशिएटिव के साथ वाबस्ता हो गई हैं। तो बहरहाल हम यही उम्मीद करते हैं और तवक्को करते हैं कि अल्लाह ताला लोगों को समझ देगा और फल देगा कि वो इस आग से लोगों को, सारे खत्ते को खास तौर पर बचाएं। इसमें कई बातें और भी पैदा हुई हैं कि इसराइल का क्या रोल होगा, ये जिहाद है कि नहीं है, अमरीकी वापस जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जाएंगे तो कैसे वापस जाएंगे, ऐसे कई सवालात दरमियान में और पैदा हुए हैं, लेकिन उनको बहरहाल लोग अपनी अपनी जगह स्टडी कर रहे हैं। तो एक तो ये था जो आपसे इसका नाम था। दूसरा, मेरी अदम मौजूदगी में बाज़ इक़दामात तो पहले ही आज़ाद कश्मीर में बहुत ऐसे इक़दामात किए जा चुके हैं जो इंतहाई काबिल एतराज़ हैं और वो कौमी और मुल्की मफादात से मुतसादिम हैं। मेरी अदम मौजूदगी में भी कई इक़दामात उन्होंने ऐसे किए हैं। तो क्योंकि मैं वापस लौटा हूँ तो अच्छा था कि उसके बारे में भी आपसे मुख्तसरन गुजारिश कर दें कि इक़दामात में एक बड़ा दूरदर्श नताइज वाला कदम उन्होंने ये उठाया है कि प्लेबिसिट एडवाइज़र अपॉइंट किया है। अब उसकी कोई अखलाकी, सियासी और कानूनी जवाजियत नहीं है, सिवाय एक ऐसी सूरत हाल से दो चार करने के कि जिससे मुल्क के अंदर तलखियाँ बढ़ें, मौजूदा हुकूमत की पोजीशन ख़राब हो। इस्तिस्वाब राय आज़ाद कश्मीर का सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि वो बैनुल-अक़वामी सब्जेक्ट है जो अक़वाम मुत्तहिदा में दो मुल्कों के दरमियान ज़ेर बहस रहा है। और जब ये फैसला हो जाता कि इस्तिस्वाब राय होना है, तो फिर इस्तिस्वाब राय की मशीनरी को कैसे चलाया जाए आज़ाद कश्मीर में, उसके लिए उस वक्त तजवीज़ थी कि आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई निज़ाम होना चाहिए कि वो उसकी देखभाल करे। लेकिन वो तो अभी बात बहुत दूर है, या कम अज़ कम फौरी तौर पर नज़र नहीं आ रही है। तो ये कर दिया। फिर वहाँ कुछ तकर्रियाँ ऐसी हुई हैं जो इंतज़ामी तकर्रियाँ, तो चलो उसमें तो कह सकता है आदमी के मेरिट डीमेरिट दोनों तरफ होता है, सियासी भी होता है, कानूनी भी होता है, अखलाकी भी होता है। लेकिन अदालतुल आलिया में भी तकर्रियाँ उन्होंने की हैं जिनका कोई अखलाकी या कानूनी जवाब नहीं है। अब झगड़ा एक ज़ाहिर पैदा हो गया कि अब अदालतों में लोग जाएंगे, पता करेंगे ये सही था, गलत था, क्या नहीं था। तो इस तरह आज़ाद कश्मीर की जो सूरत हाल है, इसको खासा खराब करने की कोशिश की गई है। और अब मेरे लिए इसका मैं सोचता हूँ कि और तो जो होगा सो होगा, लेकिन इसके लिए कोई और रास्ता नहीं है। ये जो तकर्रियाँ इन्होंने की हैं, इनको मनसूख करने के लिए इक़दाम किए जाएँ। और बात की तो वैसे कोई जस्टिफिकेशन ही सिरे से नहीं है, यानी मतलब उसमें गुंजाइश ही नहीं है कि ये तकर्री हो सकती है, तो उन्होंने कर दी है। ये आज़ाद कश्मीर को अफरा तफरी, बद इंतज़ामी और लाकानूनीत और सियासी अफरा तफरी का जो बनाया जा रहा है, अखाड़ा बनाया जा रहा है, ये बड़ा अफसोसनाक है। और ऐसे मौके पर जबकि हमारी तवज्जो मुल्क पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम की तरफ लगी होनी चाहिए थी, उधर लगी होनी चाहिए थी, कश्मीर में एक तहरीक चल रही है उसकी मदद करनी चाहिए थी, सारी तवज्जो आज़ाद कश्मीर के अंदर इन फजूल बातों पर लगा दी गई है। काफ़ी देर से, कई महीनों से इंस्पेक्टर जनरल पुलिस की तकर्री जो है वो रुकी हुई है, वो नहीं अभी तक आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने की है। और इस सूरत में अब हमारे लिए दो ही सूरतें सामने हैं जो जिन पर कोई न कोई इक़दाम जल्दी किया जा सकता है। एक तो ये है कि अदम एतमाद की जो तहरीक
چل رہی تھی اور مسلم کانفرنس نے فیصلہ کیا تھا اس تحریک کو مکمل کیا جائے. اور ایک یہ بھی کئی لوگوں کا اصرار ہے کہ یہ ایسے اقدامات ہو گئے ہیں جو براہ راست پاکستان کی سلامتی کے ساتھ اور پاکستان کی بین الاقوامی ذمہ داریوں کے ساتھ متصادم ہے. اور اس بنیاد پر جو دفعہ 56 آزاد کشمیر کے آئین کا حصہ ہے اس کے تحت یہ سارا نظام جو ہے اس کو ہٹا کر تو آسٹریلو الیکشن کروائے جائیں. یہ وہ باتیں ہیں جن پر آج کل بہت تیزی کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے اور مجھے امید ہے کہ اس کا کچھ جلدی اس کا کوئی نتیجہ برآمد ہوگا. تو یہ دو مختصراً آپ کو خدمت میں باتیں گزارش کرنا تھی. باقی بات آپ ان دونوں پوسٹ میں سے کس کے ہماری کوشش تو یہ ہے کہ جو ادارہ بن گیا ہے صحیح طریقے سے بنا ہے غلط طریقے سے بنا ہے اب اس بحث میں نہ پڑیں اور کوشش یہ کریں کہ جو ادارہ بن گیا ہے یہ ادارہ اپنا صحیح بامقصد کام کرے اپنا صحیح کام کرے اس کو چلنے دیا جائے. میری کوشش تو یہ جتنا عرصہ گزرا ہے درمیان میں پہلے دن سے لے کر جب سے میں منتخب ہوا ہوں استعفیٰ تو اسی کوشش میں ہمارا ایک گزرا ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ مجھے اپنی جماعت کے لوگوں کے ہاں بہت مورد الزام ٹھہرایا گیا متہم کیا گیا میرے اعتراضات کیے گئے کہ میں یہ نہیں کر رہا ہوں میں وہ نہیں کر رہا ہوں کبھی کچھ کہا گیا کبھی کچھ کہا گیا لیکن کوشش میری یہی ابھی تک رہی ہے اور اس وقت تک ہے کہ کیونکہ اس ادارے میں سب لوگ ایک ہی قسم کے نہیں ہیں بڑے سمجھدار لوگ بھی ہیں اور ذمہ دار لوگ بھی ہیں. وہ اس بات پر بھی یقیناً غور کر رہے ہیں کہ ادارے اگر بن جائیں تو پھر ان کو کسی طریقے سے ٹھیک طریقے سے چلانا چاہیے. ابھی تک تو ترجیح نمبر 1 ہماری یہی ہے. ایسا ہوگا دیکھو سے اور یہاں آ جائیں آپ یہاں آ جائیں یہ 2 جگہ خالی ہیں. صاحب نے فرمایا کہ عراقی قبضہ ختم کرنے میں کیا مرمانی ہے تو میری سمجھ میں نہیں آئی یہ بات. کشمیر پر بھارتی قبضہ ختم ہونے میں کیا ہوگا یہ کوئی معنی نہیں ہے اس کا کہ ہمیں طاقت نہیں ہے. ہمیں طاقت ہو تو کل ختم کر سکتے ہیں. وہ تو قصہ اس طرح کا ہے کہ بھارت ایک بڑی قوت ہے اور اس نے جارحیت کی ہوئی ہے جس کے خلاف لوگ لڑ رہے ہیں. یہاں پوزیشن بالکل مختلف ہے دوسری صورت ہے. قبضہ وہ بھی اسی طرح کا ہے ایک دوسرے ملک پر قبضہ کیا ہوا ہے لیکن یہ وہ ملک ہے کویت جس نے کہ عراق کی لڑائی میں بے پناہ مدد دی ہے اور ایک برادر ملک ہے. کوئی جھگڑا نزاع کا باعث نہیں ہے سبب نہیں ہے. یہاں تو آزادی کی تحریک چل رہی ہے لوگ آزادی مانگ رہے ہیں بین الاقوامی طور پر مسلمہ طور پر کشمیر ہندوستان کا حصہ نہیں ہے اور وہ آزادی مانگ رہے ہیں. تو یہ تو 2 بالکل مختلف سیاسی باتیں ہیں لیکن ایک اصول مشترک ہے کہ ایک دوسری جگہ قبضہ کیا ہو. جیسے فلسطین پر اسرائیلیوں نے قبضہ کیا وہ بھی غلط ہے کل کو اور کسی پر قبضہ کرے گا وہ بھی غلط ہے. یعنی کوئی قبضہ کسی پر کرے وہ سارے قبضے غلط ہیں. لیکن میں نے وہ اس لیے کہا کہ یہ تو قبضہ غلط ہونا اپنی جگہ لیکن کویت سے ہٹ جانے کے بعد اس جنگ کی جو آگ ہے یہ ختم ہو سکتی تھی. اس میں جو لوگ مارے جا رہے ہیں جو تباہی ہو رہی ہے اس تباہی سے لوگ بچ سکتے تھے اور کویت پر قبضہ کرنے کا ویسے کوئی جواز نہیں تھا جو ہمارے سمجھ میں نہیں آتا. 12 آدمی لڑنا چاہے کسی کو مارنا چاہے تو وہ جواز کا تلاش نہیں کرتا لیکن ایک اصولی بات امریکہ کو بمباری سے روکنے کے لیے کیوں نہیں اصرار کیا جاتا. یہ ٹھیک ہے کہ عراق سے بھی کہا جاتا ہے تو امریکہ سے بھی کہا جائے اور جس طرح کے فلسطین اور قراردادوں پہ انہوں نے اتنا صبر کیا اتنا انتظار کیا تو امریکہ کو فوری حملہ کرنے کی کیا ضرورت تھی. عراق کو بات چیت کے ذریعے مجبور کیا جاتا. میں کوئی امریکہ کا بریف ہولڈر نہیں ہوں لیکن ایک سچویشن فیکچوئل سچویشن جو ہے وہ ہر آدمی کو جو انصاف سے اور عدل سے بات دیکھنا چاہے اس کو نظر آنی چاہیے کہ عراق کو خاصا وقت اس حملے کے بعد دیا گیا. یہ بھی میں آپ سے عرض کروں کہ یہ حملہ کوئی حادثے کا نتیجہ نہیں ہے کہ عراق میں کوئی حادثہ ہو گیا تو وہ چڑھ دوڑا اس پر. یہ سوچی سمجھی پلان کا حصہ ہے. جب سوچ سمجھ کر عراق نے حملہ کیا ایک بڑی طاقت میں چھوٹی طاقت پر تو اس کو پھر لائٹلی نہیں لینا چاہیے کہ نہیں جی حادثہ ہو گیا تو چلو کل واپس ہو جائے گا. پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اتنا وقت دیا گیا اور تمام لوگوں نے دنیا بھر کے لوگوں نے سوائے چند لوگوں کے کوشش کی کہ یہ قبضہ برداشت ہو جائے اٹھ جائے اور لوگ اس کی قبضہ کرنے میں جو کسی شخص کو
कत्ल करने में किसी के जो तकलीफ गुजरी, जो मकतूल पर गुजरी, उसको तो छोड़ ही दें, तो जो कातिल को तकलीफ हुई मारने में, उसका मुआवजा भी लोग देने के लिए तैयार, तो वो भी नहीं उन्होंने कबूल किया। तो अब बताइए कि कहते हैं जी कि जंग बंद करें, अमेरिका बमबारी बंद करे, मगर कुवैत भी खाली करवाए। तो बिल्कुल बहन ऐसा ही है। तो कहेगा तुम थप्पड़ मार सकते हो मगर थप्पड़ का दर्द नहीं होना चाहिए। तो कैसे कुवैत को खाली करें? कुवैत पर कब्जा तो इराक ने किया हुआ है। अगर कुवैत को खाली करवाएंगे तो इराक से लड़ना पड़ेगा। ये ऐसे ही है जैसे इंडिया के साथ कल हमारी लड़ाई हो जाए तो वो कहें कि नहीं भाई तुम पठानकोट से तो हमला करो, बठिंडा से मत हमला करो। ये तो नहीं होता। जब कुवैत खाली करवाना है तो कुवैत खाली कराने के लिए कोई लॉजिकल, कोई मंतकी तरीका और नहीं है। या तो कुवैत खाली नहीं कराना हो तो और बात है, लेकिन ये आर्गुमेंट तो बिल्कुल गलत है कि कुवैत खाली भी कराओ और लड़ो भी मत। तो कैसे खाली कराओ? कुवैत खाली कराने में तो कुवैत ही पे हमला किया जा सकता है, जहां पे नहीं किया जा सकता। कोई मिलिट्री, दुनिया का कोई मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट ये बात नहीं कहेगा कि सिर्फ उसी स्पॉट पर हमला किया जाए। ये इंडिया के साथ लड़ाई देखा उन्होंने कहां हाथ चुने। वो तो लड़ाई का तो अपना एक पूरा एक फील्ड है जिसको तो हम चले गए दूसरी तरफ। सवाल मैं आपकी तवज्जो दिलाता हूँ बुश साहब के बयान की तरफ। जब शायद थोड़ी सी उम्मीद पैदा हुई कि इराक खाली करने पर आमादा हो जाए तो बुश साहब की तरफ से ये बयान आया कि जनाब अगर इन्होंने कोई खाली भी कर दिया तो हमारी फौजें वापस नहीं आएंगी, इसलिए कि उनके पास तो बड़े हथियार हैं और उनके पास तो न्यूक्लियर पोटेंशियलिटी है और वगैरह वगैरह, तो हमारी फौजें वापस नहीं आएंगी। इससे एक ये तासुर भी पैदा होता है कि इराक के लिए अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने वापसी का रास्ता न छोड़ा। और जब उसने ये देखा कि अगर मैं कुवैत खाली भी कर दूं तो उन्होंने मुझ पर हमला करके तबाह करना है, तो फिर मैं कुवैत क्यों खाली करूं? बात यह है कुवैत खाली करना तो प्रोसेस इन्वॉल्व है ना, लेकिन ये कहना कि अच्छा मैं कुवैत खाली कर रहा हूं, इसमें तो कोई प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है और इससे इराक की कोई चुटकी नहीं होती। अगर वो कह देता कि मैं खाली कर रहा हूं, फिर अगर उस पर कोई हमला करता तो ये सारी दुनिया जितनी है ये सारी उसके खिलाफ होती। लेकिन सरदार साहब इस हवाले से इराक में सद्दाम की तरफ से जो शर्त लगाएगी उसके हवाले से मुस्लिम कंट्रीज की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं हुई कि कुवैत को तो खाली किया जा सकता है, लेकिन जो शर्त लगाई गई कि इसमें फलस्तीनी इलाकों को भी खाली किया बात यह है कि ये इस स्टैंड के ऊपर जो मुस्लिम कंट्रीज को पाकिस्तान को सपोर्ट करनी चाहिए थी वो नहीं की। ये बिल्कुल नहीं सपोर्ट करनी चाहिए थी। मैं खुद पर्सनली इस बात का गवाह हूं कि इससे बड़ा फ्रॉड कोई नहीं है मुसलमानों के साथ कि इसराइल को शामिल किया जाए। इससे फ्रॉड ऑन द मुस्लिम उम्मत कि इसराइल को शामिल किया जाए। इसराइल के बारे में सारे अरसे में इराक ने एक लफ्ज नहीं कहा, बल्कि ईरान के साथ जब लड़ाई हो रही थी तो उस वक्त वो ईरानी कहते थे कि हम इसराइल को आज़ाद कराना चाहते, ये उसको मारना चाहते थे। इसराइल सबसे बड़ा दोस्त है दुनिया में अमेरिका के बाद हिंदुस्तान का, और हिंदुस्तान के साथ इतनी गहरी दोस्ती है सद्दाम की और इराक की। ये कैसे मान लिया जाए कि इसराइल का नाम सच्चा ले रहा था वो, और फिर इसराइल पर लड़ना होता मेरे भाई तो अपने घर में लड़ाई क्यों करता? वो तो इसराइल पर चढ़ दौड़ता और ये फौजी कुव्वत लेकर इसराइल को ओवररन कर देता। इसराइल का किस्सा ही खत्म हो जाता, बाद में चाहे वो मर जाता तो हीरो होकर मरता, लेकिन इसराइल तो उसका मकसद ही नहीं था। आज वो सारी दुनिया इस्लाम को फ्रॉड करने के लिए, धोखा देने के लिए इसराइल का नाम ले रहा है। कैसे उसकी सपोर्ट की जाए? अब तो नाम तक नहीं, अब तो वहाँ पे अटैक भी हो गए। शाहरुख का एक बयान छपा था, उसने कहा कि सद्दाम जो थे वो राजी हो गए थे तो इससे फौजें निकाल देंगे, लेकिन उसका मौका ही नहीं दिया अमेरिका ने। सर राजी होने के लिए उसको कोई मशवरे करने की जरूरत नहीं है। वो टेलीविजन, रेडियो, वायरलेस ऐलान कर सकता था अच्छा जी मैं खाली करने के लिए तैयार हूं, तो फिर कोई कह सकता था ये झूठ बोल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और शाह उर्दन के बारे में जो बातें हस्नी मुबारक ने और उन लोगों ने कही हैं शाह उर्दन के साथ गुफ्तगू के बारे में, उन्होंने कहा कि वो गलत बात करते हैं, वो सही बात नहीं कह रहे हैं। मुझे नहीं पता वो उनके दरमियान हुई, हम तो गवाह नहीं है, लेकिन जो बात सरदार साहब ये जो मुस्लिम ममालिक हैं इनका आपस में किसी पॉइंट पे इतिहाद है या आपस में भी लड़े हुए हैं? आपस में सर कुछ लोग हैं जो सद्दाम की हिमायत करते हैं कि भारत को डटा रहे, और मेरा अपनी जगह यकीन ये है कि सद्दाम से सारे दुनिया अरब को खास तौर पर खतरा था। सारे अरब ममालिक सद्दाम से डरते थे, इसलिए सद्दाम को मरवाने के लिए उसको खड़ा रखना जरूरी है कि वो उस वक्त तक इनको आराम नहीं मिलेगा जब तक वो न मारा जाए। सवाए उनके उन 2-3 मुल्कों के बाकी जो ममालिक हैं वो तो एक पॉइंट पर मुत्तफिक हैं कि कुवैत से वो विड्रॉ करे और ये जंग बंद हो जाए। मेक साहब जो बयान ले रहे हैं वो तो इराक का जो मौका है उसके ज्यादा करीब जाएंगे, जबकि हमारी गवर्नमेंट जो है उसका
मेरा ख्याल है कोई ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों के मौके में। मुझे जो मैंने 2 दिन में जो मैं पढ़ रहा हूँ, पहले भी मैंने बयान सुने हैं। देखिए, एक बात मैं आपसे अर्ज करूँ कि एक खदशा हर सूरत ऐसा है कि जिसके बारे में हमें इससे बेखबर नहीं होना चाहिए। और जनरल बेग साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब और प्रेसिडेंट साहब इन लोगों के बयानात में कहीं न कहीं उस खदशे का रिफ्लेक्शन मिलता है। वो तो चूंकि फौजी हैं, इसलिए शायद उन्होंने बहुत खुले अल्फाज में कह दिया, बाकी लोगों ने उसको इस तरह कर कहा। लेकिन इस खदशे का इजहार जरूर हो रहा है दुनिया में कि इराक की जो एटमी सलाहियत है उसको नॉकआउट करने के बाद दूसरा नंबर शायद पाकिस्तान का आने वाला है या आ सकता है। ये एक ऐसा खदशा है कि जिसका जब तक ये बात तय नहीं हो जाती मुताल्लिका लोगों में बैठ के, उस वक्त तक उसका इजहार किया जाता रहेगा। इस वजह से, वरना और कोई इस मौक़िफ़ में कोई इख्तलाफ नहीं है। डॉक्टर साहब, मेरे तारीख की किताबों में ये पढ़ा है कि जब बगदाद पे हमला हो रहा था तातारियों का, तो उलमा ये बहस कर रहे थे कि अगर वो खाना खाते हुए उंगलियां शोरबे में डूब जाएं तो खाना जो है वो जायज है नहीं है। कुछ यही सोच इस वक्त इस्लामी दुनिया की है कि हम ये बहस कर रहे हैं कि ये कोविड पे जज्बा हमला सही था या गलत था, और क्या वजह हुई और क्या साजिशें हो रही हैं। और मगरबी दुनिया जो है वो यूनानिमस है अपने एक पॉइंट में कि हमने सद्दाम को खत्म करना है। और नजर ये आ रहा है, यानी अगर आप CNN देखें, दूसरा जो उसमें ये है कि अगले 6 महीने में जो फैसला होगा बगदाद में, उसका पूरी दुनिया में अगले 60 साल में जो कुछ होगा उस पर असर पड़ेगा। सही। और उसमें खास तौर से मुसलमानों के साथ जो अगले 60 साल में होगा वो अगले 6 हफ्ते में फैसला हो जाएगा। सही। लेकिन हमारे लीडर हज़ार जो है खास तौर से वो ये रियलाइज नहीं कर रहे हैं, जो आम आदमी समझ रहा है कि ये जंग सद्दाम की और बुश की और किसी और की नहीं, बल्कि ये सिर्फ इसलिए की गई है कि इराक एक मुसलमानी पावर था जो कोवन बनने की कोशिश कर रहा था, जो न्यूक्लियर पावर बन रहा था, और जिसमें ये ताकत पैदा हो रही थी कि वो अमेरिका को टेक ऑन करे। और जो कुछ हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि एक मुसलमान मुल्क को खत्म करना है। तो ये जो आम आदमी का ये ख्याल है कि ये इसलिए हो रहा है, आप जो कुछ कह रहे हैं उससे कोई मुमासलत नहीं है उसमें। यानी आम आदमी जो समझ रहा है वो ये है कि ये इस्लाम की और कुफर की जंग है, और ये हकीकत है। यानी अगर आम आदमी और मेरी सोच में फर्क होना चाहिए, लेकिन अगर फर्क ना हो तो उसको अगर देखें, अगर सदर बुश के आप बयान देखें, वो बार बार ये कहते हैं कि हमने तहैया कर रखा है कि उसकी फौजी को। मेरे भाई, बात यह है, आप सदर बुश की बात को सब जेर बहस लाए कि जिस वक्त यहाँ काम ठीक होता तो हम कह सकते थे सदर बुश बड़ा बदनीयत आदमी है जी। यहाँ तो जंग बंद हो गई थी और उसने जारी रखी हुई है। इस वक्त मसला ये नहीं कि ठीक है और प्रिंसिपल स्टैंड जो है वो इर्रेलेवेंट हो चुका है। प्रिंसिपल स्टैंड बिल्कुल इर्रेलेवेंट नहीं है मेरे ख्याल में। प्रिंसिपल स्टैंड यही है कि कुवैत से विड्रॉल हो तो जंग बंद हो सकती है। नहीं, लेकिन अगर सद्दाम हुसैन ये ऐलान कर दे तो क्या उस पे मतलब जो कुछ इस वक्त इराक के लोगों पे हो रहा है क्या वो बंद हो जाएगा? अगर सदर बुश और उनके दो सूरत है ना, या बंद होगा या नहीं होगा, यही सूरत है ना। तीसरी तो कोई सूरत नहीं है, या बंद होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो ये दुनिया सारी सद्दाम के साथ होगी और अमेरिका के खिलाफ होगी। यानी ये एडवांटेज तो है अमेरिका, और ये अफोर्ड नहीं कर सकता अमेरिका कि इतनी सारी दुनिया को अपने खिलाफ कर ले, ये अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल सिर्फ मगरबी ममालिक को अपने साथ लेके चल रहे हैं। आप कुछ भी करते रहे, उसके इस्तीफा देने का कोई इसराइल पे उसने दुनिया का मौक़िफ़ तो नहीं अमेरिका ने ये इसराइल के मसले पर अमेरिका ने दुनिया का मौक़िफ़ तो नहीं तस्लीम किया। वो तो ठीक बात है और वो शुरू से उनका मौक़िफ़ चला आया। लेकिन सवाल ये कि उस मफरूजे पर हम इस मौक़िफ़ से यानी क्या बिगड़ता, क्या सद्दाम का मुझे समझा कि कुवैत से विड्रॉ करने तो अमेरिका का क्या बिगड़ता अगर वो फलस्तीनियों की हिमायत करते इस मसले में? नहीं, अमेरिका का बिगड़ता था या नहीं बिगड़ता था वो बहस नहीं, लेकिन हम बच जाते। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम जो मारे जा रहे हैं हम बच जाते सद्दाम के विड्रॉ करने से। हम मारे जा रहे हैं सद्दाम की वजह से, अमेरिका की वजह से नहीं होगी ना। जिसकी लाठी बहस किसी से आप जो कमजोर है उसको कहेगा पीछे होता। कमजोर नहीं है भाई, सद्दाम ताकतवर है। कमजोर होता तो कुवैत पर चढ़ दौड़ता। कमजोर कहाँ है? वो तो चौथी बड़ी ताकत है दुनिया की। सारे अरब बादशाह तो एक तरह से सद्दाम के साथ तो दुनिया भर के अवाम ही मुजाहरे कर रहे हैं।
ये आवाम तो मुजाहरे करेंगे, मगर ये आवाम का कहेंगे कि जो कुछ हुआ बाद में वो ठीक हुआ, इसलिए कि उनको अभी तक सारी बात का इल्म नहीं है। यानी एक आदमी अड़ा हुआ है एक बात पर, बाकी सब लोग कर रहे हैं, उसके हमदर्द लोग जो उसको पैसे दिए, मारे खाई, उसके लिए बदनाम, वो सब कह रहे हैं भाई तुम कुवैत पर कब्जा उठा दो तो हम तुम्हारे साथ है, वो क्यों नहीं मान रहा है? इसके कोई जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। सदा साहब, वो सद्दाम तो इस्लाम की तारीख दोहरा रहा है। क्या बगदाद की तारीख दोहरा रहा है? हाँ, बगदाद की तारीख दोहरा रहा है, ठीक है। सरदार साहब, ये इस्लामी मुल्कों की सरबराही कॉन्फ्रेंस करा के उसमें सद्दाम को क्यों नहीं कहा जाता, बजाय इसके एक सामूहिक ताकत भाई सरबराह होने इस्लामी मुल्क क्यों नहीं? देखिए ना, आप क्यों या तो मैं बेखबर हूँ या आपकी दिलचस्पी नहीं लेते कि सरबराहों में से कोई एक नहीं है जिसने सद्दाम की मिन्नतें न की। एक सिंगल सोल ऐसा नहीं है जिसने सद्दाम के पास बार बार आसनी मुबारक उसके पास खुद गया बादशाह के कहने से, सऊदी अरब वालों के कहने से वहां गया और उसने श्योरेंस दिलवाया कि बकौल आसनी मुबारक थे, जो अखबार उससे पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आसनी मुबारक ने तो अमेरिका से भी कर्जे माफ करा लिया और सऊदीया से भी करा लिया। तो अच्छा, अकलमंदी की बात है कि वो कर्जे भी लेता रहता, मार भी खाता, उसकी वजह अकलमंदी की उसने, तो कोई हद नहीं। आपके बाद हमारी बारी है। हाँ, इस पे आपका क्या ख्याल है? हमारी बारी है? ये हमारी बारी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ये तो बोथ वे। इसलिए कि अगर बाकी काम ठीक हुए तो हमारी बारी टल सकती है, और अगर नहीं ठीक हुए तो फिर हमारी बारी भी आ सकती है। इराक पे जो इस वक्त सालवी आरामा कह रही है मुसलमानों की कि इराक की जो मुस्लिम पावर है इस वक्त, उसके पास डिफेंस मशीनरी है, उसको तबाह करने की उन्होंने किस बहाने कोशिश ये कर रहे हैं। कल को किसी और बहाने से ये दूसरा मुसलमान मुल्क जो पाकिस्तान है, ये बिल्कुल हो सकता है मेरे भाई, मैं इम्कानात को मुस्तरद नहीं करता, लेकिन जो हुआ है उसको क्यों नजरअंदाज कर? कुर्द मुसलमान नहीं थे जिन पर गैस इस्तेमाल किया गया, उनको क्या कहेंगे? काफिर थे वो, और क्यों इस्तेमाल किया गया गैस उन पर? और कश्मीर के मसले पर कभी हिमायत की, अफगानिस्तान के मसले पर इराक ने हिमायत की, मुसलमानों के किस मसले में इराक ने हिमायत की? मुझे बताया, नाम देकर जरा। यानी यहाँ इराकी सफारत खाने में असला के स्कैंडल से लेकर आज तक किस दौर में मुसलमानों की हिमायत की? इंडिया के साथ दोस्ती का आपको पता है, बेनजीर साहबों को भी कहना पड़ा मजबूरन, जो उसकी बड़ी हामी थी। सरदार साहब, वो तो अफगानिस्तान वालों ने तो हमारी यूएनओ में एंट्री तक जो है रुकावट खड़ी कर दी थी, लेकिन हमने जब वक्त आया, अफगानों को जरूरत पड़ी, हम लोगों ने उनके साथ भाइयों वाला सलूक किया। भाई आपने किया तो आप भी बच गए ना, आपने कोई एहसान नहीं किया, आप भी बच गए, मगर अफगानिस्तान के लोगों के साथ तो हमदर्दी होनी चाहिए थी, उनके साथ तो हमदर्दी का इजहार करना चाहिए था। यानी मुसलमानों के किस इज्तिमाई मामले में सद्दाम की हुकूमत ने मदद की, मुझे बता दें, जरा समझा दें। ये कैसे हम आज इस्लाम का नुमाइंदा उसको समझ लें? फिर बास पार्टी बाई सेल्फ, अगर आपने दुनिया में लादीनी निज़ाम को मानना है तो फिर हमारे घर में ला रही थी बेनजीर, उसको क्यों नहीं मानते? अगर लादीनी निज़ाम को मानना है, उस बदतरीन लादीनी निज़ाम को जिसके अंदर तमाम लादीनी कबाहतें कानूनन जायज हैं मानना है, तो फिर हिंदुस्तान को क्यों नहीं मान रहे थे? लादीनी निज़ाम है, वो हमारे पड़ोस में बड़ा मुल्क है, लड़ाई क्या हमारी? यानी किस तरीके से आज सद्दाम मुसलमान इस्लाम का हीरो बन गया? बाई व्हाट स्टैंडर्ड? इस वक्त बात इस्लाम की और नहीं, मेरा बात और तरफ चल गई ना। मैं मसला इस वक्त है कि एग्रेसर जारे और मजरूफ की बात, जारे सद्दाम है जिसने कुवैत पर जारियत की है, पहले ईरान पर की जारियत, फिर कुवैत पर की जारियत, तो अब उसको छुट्टी दे दें, बाकी लोगों पर भी जारियत करें। चॉइस कोई नहीं आपके पास, दो वो भी दबाव डाला जा सकता है अगर आप राजनीति में डालने की पोजीशन में हो, लेकिन अब ये दोनों का कैसे मिला के देखते हैं? बात यह है कि एक जारियत ये हुई है, एक जारियत तो अरब लड़ रहे हैं उसके खिलाफ, एक जारियत ये हुई है और घर के अंदर हुई है। इसको आप अमेरिका को और अमेरिका को मुसलमान मुल्क है या इसराइल को मुसलमानों का मुल्क है या उसमें जारियत की है उन्होंने, ये तो अपने घर में जारियत हुई है, इसको दोनों को मिला कैसे रहे हैं आप? ज्यादा बार लोग ये कहते हैं कि जैसे सलाउद्दीन अय्यूबी ने अपने इर्द गिर्द के इलाके पता किए थे सलीबी जंग में लड़ने के लिए, इसी तरह ही इसको इसराइल से लड़ने के लिए ये कुवैत को और अच्छा आर्गूमेंट है, अच्छी दलील है, लेकिन ये सब उसके सपोर्टर थे भाई, ये उसके कोई मुखालिफ नहीं थे, ये सब सपोर्टर थे, अपने सपोर्टर्स को मारा उसने, ये नहीं कोई करता। वो भी तो एक इस्लामी मुल्क को मारने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। इसको
इराक को ईरान के खिलाफ इन सब ने मिलकर इस्तेमाल किया। इनके लिए भी चार्ज कोई नहीं था। अगर ईरान कामयाब हो जाता तो वो इन पर चढ़ दौड़ता, अगर ये कामयाब होगा तो ये चढ़ दौड़ा, उनके लिए भी चार्ज कोई नहीं था। सर अब चार्ज ये है कि हम लोग अमेरिका के हाथ पे गंडासा पकड़ा देंगे, मौला जट बन के मुसलमानों को खत्म करेंगे। नहीं, मुसलमान इतने कमजोर भी नहीं है, ना अमेरिका इतना ताकतवर है। आप वो जमाना भी चला गया जो जमाना था, लेकिन हमें ये नहीं, अमेरिका की ताकत ठीक है, फौजी ताकत बहुत है उसके पास, लेकिन फौजी ताकत का भी आप देखेंगे उनके जो फौजी हैं उनका जो हशर है वो भी जरा देख लें। कोई इधर रोता है, कोई उधर रोता है, वो तो मशीनों के जोर से लड़ रहे हैं। और इंटरनेशनल पॉलिटिकल पावर अमेरिका के पास अब वो नहीं रह गई, ये कि ओवररन कर रहे सब, वो नहीं रहे। उसको भी लोगों को साथ मिलाना पड़ा अपने इर्द गिर्द, तो तब वो कार्रवाई की। साहब मसला खासा जज्बाती है और आप तकरीबन तनहा हो गए हैं। मैं जज्बाती बात नहीं करना चाहता, मैं वो बात करता हूँ जो एक्चुअल। आपकी हिमायत में सवाल पूछूंगा ना, हमारे मुझे भी तनहा होना पड़ा शायद। ये बताइए कि ईरान पर हमला करते वक्त सद्दाम साहब किसके शहर में गए थे? ईरान का दुश्मन तो अमरीका था उस वक्त, आज से 10 साल पहले। सद्दाम ने ईरान पर हमला किया, अमरीका के शहर में। हो सकता है, हो सकता है, जाहिर है। आई डोंट नो, मुझे इल्म नहीं है, मैं इसे कहता हूँ हो सकता है। फिर अब ये जनरल बेग साहब फरमाते हैं कि इराक वाज ल्योर्ड इनटू अटैकिंग कुवैत, और ये भी छपा हुआ है कि मिस प्राइस की अमेरिकन वो अमेरिकन सफीर सद्दाम की मुलाकात, और उसने ये इंडिकेशन दिया कि झगड़ा ही किया, फिर लड़ने दो दोनों को। अगर यही सूरत है तो सद्दाम साहब क्यों झगड़ रहे हैं? सद्दाम साहब ने ईरान पर हमला किया अमेरिका के शहर पर, कुवैत पर हमला किया अमेरिका के शहर पर। तो ये कहा गया इस्लाम है कि हर काम अमेरिका के शहर पर करते हैं और कहते हैं अगर ये सही है, यानी मुझे इसकी कोई तस्दीक नहीं बात है, लेकिन अगर ये सही है तो फिर तो हमारा तो बीच में झगड़ा ही कोई नहीं, वो आपस में लड़ रहे हैं, अमेरिका ही लड़ रहा है, इधर भी उधर भी लड़ते हैं। आवाम भी लड़ रहे हैं, तो फिर हम अपने आवाम के साथ चलें। आप अपने हुकूमत के साथ चलें, इसलिए कि ये मसला आवाम ने नहीं सेटल करना, ये हुकूमत ने सेटल करना है। आवाम को चाहिए, ये हुकूमत का साथ है। आवाम देखिए, आवाम कल मैं आपको बताऊं, ये जब गंगा हाईजैक हुआ, आपको याद है कि सारा पाकिस्तान मेरे खिलाफ उमड़ आया था, सरदार कयूम का सर चाहिए। और उसी फोरम में जब मैंने तकरीर की तो उन्होंने कहा कि सरदार कयूम के आज हम पाक हो गए। ये अवाम से यही होता है, और लीडरों का यही कमाल होता है कि लीडर इस तरह अवाम के पीछे नहीं चलते। लीडर लोगों को अवाम तो नहीं समझते इन बातों को, उनको तो जो प्रोपेगेंडा कहीं से आता है उसी से सुनते हैं। लीडर्स का काम है कि वो सही बात समझाएं कि सही मौक़िफ़ क्या है और उस पर कायम रहे। नज़रुल्लाह खान, जेआई के हाफिज अब्कारी हुसैन अहमद साहब, हाफिज हुसैन अहमद साहब, मौलाना अब्दुस्तार नियाज़ी और जनाब इजाजुल हक साहब, सबका तो आवाम के साथ। मेरे भाई बात यह है कि इसमें कुछ ऐसी बातें भी बीच में अब आ जाती हैं कि बात एक ही कर रहे हैं लेकिन मकासद शायद मुख्तलिफ हैं लोगों के। मैं समझता हूँ कि इस मामले में गवर्नमेंट का साथ है, गवर्नमेंट लीडर है इस मामले में। आप कह रहे हैं कि अवाम जो है इस वक्त उनकी राय नहीं है, आप अवाम के वोट से मुस्तफिद हो गए हैं, अवाम का ये फैसला सही है? अवाम ने मेरी बात सुनी तो मुझे वोट दिए ना, मेरी बात न सुनते तो कैसे वोट देते? ये अवाम का फैसला बदल देंगे, फिर फिक्र न करें। जनाब 2 अगस्त को इराक ने कुवैत पर हमला किया, बदला किया। 14 अगस्त को जनरल मिर्जा असलम बेग साहब से यहाँ अखबार नवीसों की मुलाकात हुई, जब उस वक्त 2 ही साल थे वज़ीर आज़म। तो उन्होंने जहाँ सद्दाम के इस इक़दाम को अहमकाना करार दिया, वहाँ ये भी कहा कि इराक की मिलिट्री माइट को जिसे अमेरिका तबाह करना चाहता है उसे बचाना मकसूद है। तो इसके बारे में यानी उन्हें तो वो तो क्लियर थे 12 दिन बाद कि ये मामला है। बिल्कुल मैं भी वही बात कह रहा हूँ जो उन्होंने कही है कि एक सद्दाम की वजह से सारा इराक तबाह हो रहा है, मिलिट्री माइट तबाह हो रही है, सारे मुसलमान मारे जा रहे हैं एक आदमी की वजह से। अब उसका क्या इलाज है किसी के पास? मुझे पता, किसी के पास इलाज हो तो कर दें। मैं तो यही कह रहा हूँ कि ये बात नाकाबिल फहम है कि एक आदमी को पता है कि भाई मेरी वजह से ये सारी तबाही हो रही है, और अगर वो विड्रॉ करता तो उसको कौन मारता, कौन तबाह करता? जी आपने कहा कि कामयाब रहा, लेकिन साथ साथ ये कैसे मिला कि इसके रास्ते मुश्किल, वो कौन सी मुश्किल है? वो मैंने जिक्र कर दिया, मैंने उनको पिन पॉइंट कर दिया कौन सी पॉसिबल मुश्किल है। राठौर साहब के खिलाफ अदम एतमाद कर रहा है, मेरा को ज्यादा वक्त नहीं है। जनाब आपने जो फरमाया कि जो तकर्रियाँ हुई हैं उनका इसके अलावा और कोई हल नहीं है कि उन्हें मंशूर किया बात तकर्री। तो
आप इस सिलसिले में یہ اس کو لیگل وہ اسٹڈی کر رہے ہیں قانونی کیا کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں. خدا صاحب آپ کے خیال میں رشیا کس اسٹیج پہ اس میں داخل ہوگا؟ رشیا نہیں داخل ہوگا. رشیا اپنے گھر میں بہت پھنسا ہوا ہے. سردار صاحب کے نواز احمد صاحب نے آپ کو تو دعوت نہیں دی اپنی بیٹی کی. دعوت ملی تو جائیں گے. وہ ملے گی تو پھر بات کریں گے. سردار صاحب یہ جو ابھی آپ نے فرمایا کہ آزاد کشمیر کی موجودہ حکومت کچھ قانون سے بالا کر یا غیر منصفانہ قسم کی کر رہی ہے اقدامات اور آپ دو معاملات دیکھ رہے ہیں اس طرح کے یہ اگر کوئی ایسی وہاں کاروائی ہوتی ہے تو مقبوضہ کشمیر میں ہماری جو تجویز چل رہی ہے اس کو نقصان کس کاروائی سے یہ حکومت کو مقبوضہ کشمیر میں آج جو گن خانہ آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے اس سے بدتر کیا ہوگا؟ پہلے یہ 2 سال کے خلاف عدم اعتماد کی بات کی رہی ہے تو اب آپ نے نئے الیکشنز کی بات کر دی ہے. آپ کی عدم موجودگی مطلب نئے الیکشنز کرائے جائیں آزاد کشمیر میں. دو صورتیں رہ گئی ہیں. ایک یہ کہ 56 اگر لاگو ہوگا تو ظاہر اس کے ذریعے میں الیکشن ہی کروایا جائے گا. جی آپ کی عدم موجودگی میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا تھا آزاد کشمیر حکومت کی. اس میں بھی آپ کے خلاف عدم اعتماد ان کا حق ہے. ان کا حق ہے. ایسا تو نہیں کہ آپ کو اس عدم اعتماد سے بچنے کے لیے پہلے ہی ان کا حق ہے. بھائی بات یہ ہے کہ وہ عدم اعتماد گورنمنٹ پارٹی ہے, وہ جب چاہیں کر سکتے ہیں. مجھے اس سے بچنے نہ بچنے کی. اور ان کے پاس سب کو پتا ہے کہ ان کے پاس وہ اسٹرینتھ موجود نہیں. اگر ہوتی تو وہ کبھی اس کا لحاظ کرتا. آپ کے بارے میں بھی وہی ہے. انہوں نے ہمارے بارے میں تو واضح ہے نا کہ ہم اکثریت میں ہیں. ہم اکثریت میں تو وہاں نہیں ہے گورنمنٹ میں, تو واضح ہے. مگر وہ تو اکثریت میں ہے نا, مگر ان کے پاس ہی موجود نہیں ہے. 56 یہ ہے جی کہ حکومت پاکستان اپنی بین الاقوامی ذمہ داریاں پورا کرنے کے لیے ایسی سچویشن پیدا ہو جائے تو وہ آزاد کشمیر میں یہ 1-2-3 ایسے یہ ایکشن لے سکتی ہے. صدارتی رول کر سکتی ہے. صدارتی ہو یا کوئی کسی کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں. کسی بریگیڈیئر یا آپ کو لگا سکتے کسی کو لگا سکتے ہیں. اندر کانسٹیٹیوشن کو پابندی نہیں. سردار صاحب فاروق چل رہے ہیں جلدی بیٹھیے 2 منٹ یار. ان کے ساتھ بات کرنے کا جلدی کیا ہے. Because you never meant anything in this. And these couple started the military right that he possessed. He could have overrun Israel if he wanted. But he never wanted. And this is simply defrauding. Rafi never fought. They never even talked about it. They wanted to conquer the Gulf states. I was supposed to the Iraqis of 2 years back and other Arab countries, and they were sure that if he succeeds, he was also going to invade Gulf. And if Iran succeeded, they were also going to. They had no choice. I would not like to comment on what Kamal people said. I think there is not much of difference. There is not much of difference. I don't think it's only a matter of small details. One of the larger details seems to be that they're keeping very close to the bombing of Iraq. The coalition has gone beyond the UN resolution, that they're now He has access to greater store of knowledge and information than myself, and for greater possibility. From what I can see, my position is that there was no way to
gets vacated except by attacking Peshawar. There's no military base. He made the argument that They don't work. No, they didn't work for a long time. They didn't work. They won't have worked. It would have taken years. And enemy guns, he might have accumulated more atomic, nuclear, and chemical capability. What's going to take to force, This is the only way. Are they going to have to Being carried destroy out? you? The allied action. Multinational forces. What about a full scope? A lot of people say that the Iran and Saudi Arabia, a lot of these monarchies are on the way out, and that's one thing that Saddam did do. At the moment, they are not on the way out. They will stay. And in the post-war Gulf position, the main dispute today is how long is America going to stay in the Gulf? That's the main dispute. Actually, it's not the monarchies which are disputed. As long as the people want to have monarchs, they will have them. Nobody can impose any system, superimpose any system from outside. But that is the main question: how long are the American forces going to stay in the Gulf? What are the Saudis saying? What were the Saudis saying to you as far as how long the Americans would stay in the Gulf? Well, in fact, instead of asking them, I said myself to them, you see, that the American forces cannot, for their own reasons, stay far longer. That is one, in the Gulf. Number two is that they will want to have a substitute to replace them in the Gulf. And that substitute must be found out by Saudi Arabia, Turkey, Iran, and Pakistan. And as long as they do it, as soon as they do it, some people say that one of the reasons that the Army Chief of Staff came out with his statement just hours before the Prime Minister's press conference was because the Prime Minister did not push the Turkey, Iran, Pakistan alliance in the Gulf, in a full scope. Do you know anything about that? The strategic alliance which they was that. I have no knowledge of that whatsoever. Can I ask one question? Sure, of course. But I personally think that it is my absolutely personal opinion and nothing to do with any information. I think that General Beg and myself and everybody else is feeling equally concerned of the American position in Pakistan. The stopping of the military aid at a very wrong time. Also, the military aid of $600 million is not important at all. The people outside Pakistan contacted me in hundreds, and they said, we will raise funds to donate and remove this burden of debt. But you see, it's a question of the wrong timing and strategy chosen by them, and the way it was propagated and projected. You see, all this, and plus the nuclear capability of Pakistan, where it has not been exempted as yet. Although the nuclear capability of Pakistan is not comparable with the nuclear capability of Iraq, because they had different objectives and we have different. We are forced to have nuclear capability because we are opposed to a much superior, greater force against us all the time. So we are permanently under threat from India, whereas Saddam was under no threat from anybody to build up a nuclear capability. So now these are the questions. So are you saying that Pakistan has the nuclear capability? They should have the nuclear capability. Why should they not? Do they have I think they all have said so. Well, so you have said that ambiguity was Pakistan. Well, what they have said should be taken. We should go by that. I'm sorry. Just one. I want you to finish it. There is no hurry up. So therefore, these questions will keep worrying the minds of the people here, you see. What you're saying seems to go against what most people in Pakistan say. I mean, there seems to be very strong sentiment for Saddam, a lot of support for his amongst us, there's a saying, an old saying, you might have heard it yourself, that some people do it for the love of one disciple of the Prophet, and others opposed to the other disciple. You see, it's not for the love of it. Well, it might be. It's not for the love of Saddam. It's against the sentiment against the United States, which is unfortunate. Again, because our relationship that is at the root of everything. Because our relationship with the United States is not based on aid of $600 million. You see, it's a global. It involves a global responsibility where the United States has been playing a very positive, constructive role. But unfortunately, the friends of the United States don't have the moral courage to come up and defend them. I'm sorry, you go ahead. No. It's your turn. I don't know. I don't know. So that's how I think I got you correct.
you said that the peace efforts made by King Fahd and other Muslim leaders before the war, are you satisfied with those efforts? They went to any extent. I honestly tell you, what I heard right from their own mouth, they went to any extent. They begging peace, pledging support, and doing anything for them, for Saddam, for Iran. But they were all blatantly refused by him. Even the diplomatic initiative was exhausted. Everything was exhausted. Even the Americans did not want a war. You don't think George Bush wanted? I don't think George Bush wanted a war. Because it would vindicate the United States for Vietnam. It would make him a power. Yes, in the but there was danger of United States. You see, but don't you think that this is whether we win the war, multinational forces, or lose, God forbid. Both cases, the world order is going to undergo a very great change, and America will ultimately be held entirely responsible for that. You think they are oblivious to that fact? They should be quite sensible. There may be some backlash. So it's not simple as saying you see that to vindicate their position in Vietnam. It's not as simple. Why do you think they're doing what they're doing now with Pakistan? You say one thing, the timing is wrong, their approach to Pakistan. Why the United States? Yes. Why do you think they're behaving the way they are toward Pakistan? I think they are between the devil and the deep sea in fact. On one hand, they want to save India from internal disintegration and destruction. And on the other hand, they want to retain Pakistan also. And Pakistan and India being at war. So these anomalies of the situation will remain. That's their dilemma. Yes, that's the dilemma. Thank you very much. So that's how some people are saying that Pakistani troops should be recalled from Saudi Arabia. Pakistani troops should be enhanced in Saudi Arabia. More. And we must be categorical about our attitude. We must not take a confused attitude at all. But it's very confusing, Mr. President. Pakistan I know it is. That's why I'm saying that it is. Why is it so confusing? Why is Pakistan got it? If everybody is agreeable, why is There it are many elements. There are many elements. As I told you, there is a sentimental element for Baghdad. The people in here believe, no matter, like for example in Saudi Arabia. You see, I don't believe in monarchy, but monarchy in Saudi Arabia is acceptable to me. I have sort of emotional attachment to them. See, because they're defending the two holy mosques, they let the two holy mosques. The same is the position with Baghdad. There are many people who want to defend Baghdad. They don't want to see destruction, no matter what kind of rule. Thank you very much. Gulf पर the situation ऐसी रहे एक तरह कानून पर डालिएगा मैं इशारा करेंगे सर ये कौन सा कोई नहीं है बिल्कुल कोई नहीं unknown, absolutely unknown. Fraud and unknown.